basically what we will do in this session, first of all, I will ask some questions from sir. He will tell us that what what kind of questions is necessary for preparing for your interviews. Okay, and he will also give you chance to ask the questions which whatever questions you want to ask from him. At the last we will take questions of your questions also from him. So I will allow all of you to unmute yourself in the last. Right now you can't mute yourself. So okay, so before starting, I will introduce Yeshveer sir. So Yeshveer sir is MANIT MTech pass out. He was from CSE branch, and right now sir is tech lead in Indiamart. Basically, he is a technical recruiter. He takes the interviews of all the desperates who want to join the company, so he can guide us properly that how we should prepare for our interviews. And at the same time, sir is also Avanti Kulam director. Avanti Kulam is actually a technical society. So basically, he sees how to get into the right direction about your studies. So he will tell us a lot of points about that also. And basically, see, your studies are important, but even more important is how you are representing yourself. So I request all of you to be very attentive and ask doubts at the end. And at the last, I will request all of you to turn on your videos so that session can be even more interactive. Now, yeah, please everyone turn on your videos. Harshit has turned on his video. Others also. Okay. So I would hand over to Yeshveer sir. Okay, sir. Very Hello good everyone. evening, sir. Am I audible? Very good. Okay, Yes, sir, you are fine. audible. Okay, that's great. Okay, sir. So I think we should allow others, let they should be allowed to unmute themselves. So okay. So before starting, just because when I was watching that video was stuck at many point. I don't know. How many of you saw this video going smooth? Hmm? Are they writing in chat? Okay, I'll open chat. Be active. Yeah, it was lagging for some time. Okay. So okay. Just in order to save time, you can see it on YouTube. You can share YouTube link here. Huh? I saw it on YouTube. It's very nice video actually. Yes, sir, it is already shared. Okay, that's nice. Okay, so I can see few people's like Harshit, CSC. Okay, that's nice. I can see branches also. Jatin, EC, Shoni. Which branch? You can rename with branch also. That's nice. Aniket Chukla, Ashish Morwal, then Aryaman Purohit, Tarun Shah. For those who are not available, I won't be reading their name because if I can't see them, then how can I, interact with them? So the one who are, visible to me will be given priority. Okay, Utkarsh, IT. Okay, so yeah, many of you might be anxious, and at the very same time, we have so many questions to, ask. Because once we are inside, college life, like every student, he has an, reoccurring thought that goes in his mind again and again about, which company I'm going to, what placement I would be getting. All these questions arises, especially to the one who, newly joins a college. Am I right? Yes or no? You can, comment yes or no.
Yeah. Hi, Shoni. Yes. 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 Yeah. Everyone, because ultimately we paid, our hard work and efforts in All order right. to get some good college, and from there, so that we can have, uh, our professional life, our working life, in some way stable, and place where it has been recognized by some, like all over the world, you can say. Because normally people always wanted the place where I'm working should be, you know recognized by people. I should not tell like I'm working in this particular place, and I should not explain. It should be its name should be, explaining about, its renounce, how much renounce this place is. So it's not that much difficult. Just the thing is, you need to be very, systematic in studies. That's it. So yeah. Okay. So you can ask, I can answer, I can try to answer according to my experience. Okay, sir. So some of the very general questions which the students have in their mind in first years, I will ask you that, and after that we will hand over to the students. So first of all, the most basic question is that how we should introduce ourselves in interviews to make a good impression, as it is called that first impression is the last impression. Yeah, actually, first impression is the last impression. Mainly the best part is, uh, you should present yourself what you are. When we try to manipulate, then things goes wrong. And as an interviewer, and I want to be very clear. I know I work as in a backend in a company, and during freshers, when there is a company drive, they want to recruit people from NITs, IITs, and triple ITs, and some creamy colleges. They give, they schedule interviews for us, 2, 3 interviews a week. So it's, when we just tell them to introduce themselves and they try to manipulate. Okay. Acha, tell me, am I comfortable? What should I choose, Hindi or English? Or any? Okay. Personally, someone told me to ask हिंदी, तो हिंदी में बता सकता हूँ, नॉट ए प्रॉब्लम. तो एक्चुअली क्या है कि जब हम, या आई यूज बोथ, डोंट वरी. तो जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं इंटरव्यूअर के सामने, और चीजों को मैनिपुलेट करके बोलने का प्रयास करते हैं, वही हम फंस जाते हैं. बिकॉज जो आप नहीं है वो आप प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आइदर इन द फर्स्ट स्टेप और इन द सेकंड स्टेप यू विल बी कॉट. और फिर उसके ऊपर जब सवाल पूछे जाएंगे, देन योर इंटरव्यू इंप्रेशन इज गॉन. मतलब जैसे कई बार होता है, पीपल ट्राई टू मेक कि मेरी हॉबीज इस तरह कैसे हैं, या फिर मैंने ये किया है वो किया है. फिर इंटरव्यूअर क्या करता है, उसी के ऊपर प्रश्न पूछ लेता है. बच्चा तो सोच के जाता है कि ये तो बस इंट्रोडक्शन था, इसमें से नहीं पूछेगा. लेकिन इंट्रोडक्शन को हाई फाई बनाने के चक्कर में अपनी लाइफ डुबा लेता है. तो ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल एंड जेन्युइन. जो आप हैं उसको बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है. क्योंकि इंटरव्यूअर के पास ऐसे प्री सेट माइंडसेट नहीं होता है. मतलब पहले से माइंड बना के नहीं आता है कि यही प्रश्न पूछना है. द वे यू स्पीक, जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, तो वहीं से ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस निकल जाते हैं, है ना. जैसे कोई बच्चा बोलता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, कोई बोलता है कि मैंने ये यहाँ किया है, ये चीज अचीव की है, तो इंटरव्यूअर ऑटोमेटिकली उसी के बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है. और इसी तरीके से फिर उसका आंसर आप देते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग लो एक चेन बन जाता है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर. तो बेस्ट पार्ट इज ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल एंड जेन्युइन. व्हाट आई एम, हाउ माय family background is, and what I'm currently. Obviously he knows what you're pursuing and what your marks are, and what my hobbies are, and what my interests are. Simple. Because if
already you gave the resume, and if you'll tell everything, then it may become complicated. So try to make it as simple as possible. Okay. Yeah, please, next. Thank you, sir. Sir, can you please share any funny incidents from whenever you are taking interview? Like any funny incident? people, बच्चे क्या होता है कि एनआईटीज में आ जाते हैं, आईआईटीज में आ जाते हैं, लेकिन बेसिक जो नीड होती है, एक्चुअली आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप अगर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, तो आपको कुछ नहीं आता है, इसका मतलब, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं प्रश्न पूछता हूँ, उनको प्रश्न ही समझ नहीं आता है, क्योंकि पीपल दे आर वेरी वीक एट इंग्लिश, दैट इज वेरी एसेंशियल। और फिर मतलब आई हैड एन इंसिडेंट, आई टेल यू। तो एनआईटी जयपुर का इंटरव्यू ले रहा था, तो एमटेक का स्टूडेंट था वो, एंड आई आस्क्ड हिम सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, like what are your interest, and if you want to study something, how you will approach to study. जैसे आपको कुछ पढ़ने को बोला जाए, तो आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं पढ़ने के लिए। मतलब जैसे अलग अलग तरीके होते हैं कैसे पढ़ना, किसी चीज को पढ़ना, कि पहले सिंपली ओवरव्यू जानने के लिए गूगल करते हैं, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स चूज करते हैं, या फिर कुछ यूट्यूब, मतलब अलग अलग लोगों के पढ़ने के तरीके होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था, and he got collapsed, मतलब collapsed in the sense he was not able to answer. तो मतलब या तो एक चीज है कि you should not be afraid, आप इतना घबराए नहीं होने चाहिए, और दूसरी चीज मतलब जो बेसिक है ना, कम्युनिकेशंस, मतलब that should be very strong, मतलब otherwise it becomes difficult. And don't try to cheat interviewers. मतलब आप अगर इंटरव्यूअर को चीट करने की कोशिश करते हो, तो चाहे कभी कभी लगता है कि शायद इंटरव्यूअर ने नहीं पहचान पाया, लेकिन वो पहचान लेता है, और फिर वो आपको फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू कंप्लीट करता है, और बाद में आपको रिजेक्ट कर देता है। मैंने कई को किया ऐसे, बहुत लोगों को। तो वही मेरे लिए फनी हो जाते थे, स्टूडेंट के लिए तो नहीं। तो दिस इज द थिंग, एंड फ्यू पीपल आर दे आर वेरी गुड, मतलब क्वेश्चन पूछो उनसे और दे गिव वेरी इंप्रेसिव आंसर। Just at the very first instance only we make the mind, yes I am going to select this person. और बाकी कुछ मुझे याद आएगा तो बताता हूँ। Yes, sir. So I will take the next question, that how we should make our resume good, and what are the things which we should add in our resume so that we can make a good impression. हाँ, this is the part. Actually देखो, मतलब recently I had a discussion with one of my friend. He was giving interview in Oracle. So I saw his resume, मतलब his resume was consisting of so many things. उसके resume में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐड कर रखे थे। तो उसने बताया कि मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, इस प्रोजेक्ट में क्या यूनिक है, यूनिक इन द सेंस, क्योंकि जैसे हम कुछ भी प्रोजेक्ट बोलते हैं वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ऐसा क्या है जो आपने अलग किया है या आपने कॉपी किया है। मतलब अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जैसे का सेम ही है तो मतलब कॉपी किया है, और जब आपने कॉपी किया तो फिर कॉपी कर करके आपको रिज्यूमे बड़ा करने की क्या जरूरत है। तो प्रोजेक्ट शुड बी लाइक दैट, कि आपने जो किया है ना उसमें कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए जो बाकी लोगों ने उस तरीके से नहीं सोचा है ना, और उस तरीके को रख लो, उसमें उस तरीके के प्रोजेक्ट रखो, तो एक्सप्लेन करोगे तो हाँ इंटरव्यू को लगता है वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है। सेकेंड, मेंशन द स्किल्स, डोंट ट्राई टू मैग्नीफाई योरसेल्फ। मतलब काफी लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, तो जो फॉर द फ्रेशर ना जो स्किल्स आती है वही लिखो, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। जोश जोश में बहुत कुछ लिख देते हैं, और गलती से जिसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसी से इंटरव्यूअर ने सवाल पूछ लिया और आप नहीं बता पाए, तो ही आपका बैड इंप्रेशन आ जाता है, क्योंकि ये तो आपने लिखा है कि मुझे आता है और उसी पे सवाल पूछा, क्योंकि हम तो वही पूछते हैं जो आपको आता है, हम कुछ नया नहीं पूछते हैं। आई सिंपली आस्क कि आपको विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट,
इन कंप्यूटर साइंस, और फिर मैं उसी से सवाल पूछता हूँ और उसी से नहीं बता पा रहा है तो फिर तो क्या मतलब हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि हम उसे सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता पा रहे हो तो बाकी तो क्या बताओगे, है ना। तो दिस इज हाउ कीप योर रिज्यूमे वेरी शॉर्ट। बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। कीप द थिंग्स विच यू आर एक्सपर्ट एट, है ना। ऑल्सो हैव कीपिंग हॉबी इज गुड, कीपिंग extra curricular activities is good, and sometimes people ask and they like, and and try to people try to see also like if this person has leadership quality or not, है ना। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से दिख जाता है कि what kind of activities is doing, तो automatically some we can make it out, and sometimes people ask also। और जो प्रोजेक्ट किए हैं वो ऐसे इस तरीके से अभी से ही, यू आर न्यू गाइस, तो अभी से ही प्रोजेक्ट जो भी कर रहे हो, जो भी ट्राई करो, जो रिज्यूमे में लिखना चाह रहे हो, तो उसमें मेक समथिंग विच इज यूनिक, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द प्रोजेक्ट विच आर ऑलरेडी देयर। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहे होते हैं, या तो कंप्लीट आइडिया, न्यू आइडिया, तो दैट्स वेरी गुड। नहीं तो अगर आप पुराने में ही कुछ कर रहे हो तो यू शुड ऐड ऑन समथिंग, है ना। एंड मेक श्योर, सी like I told for the first question, introduce yourself, अपने आप को introduce करो as a genuine, don't try to add up things मतलब unnecessary which are not true for yourself। and for resume also make it very simple, simple in the sense short and precise। मतलब आपको ज्यादा लिखित में अपना ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में प्रेसाइज में आप बता दो, इंटरव्यूअर विल अंडरस्टैंड। क्योंकि ऑब्वियसली वन हु इज टेकिंग इंटरव्यू and he is well qualified and well experienced than you, so you don't need to explain him or her in detail, है ना। Okay, I think that's it। Thank you, sir. Sir, next question is that a few days before the interview, how should we prepare? Like few days before, we get very nervous now. So at the last moments, like what should be the preparation for the interviews? We should not lack this confidence। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जैसे कई बार होता है, मतलब कुछ इंटरव्यूअर्स अच्छे होते हैं, मतलब आई मेट ए गर्ल, शी वाज फ्रॉम आई रिमेम्बर इंदौर, SGSITS एक कॉलेज था, हाँ आई रिमेम्बर। तो एंड हर नेम वाज आल्सो आई एम नॉट धनश्री, ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। तो she when she joined and she introduced herself, then I asked her question, मैंने क्वेश्चन पूछा तो she was kind of afraid, nervous होने लगी थी। and then I gave her time कि ठीक है 1 मिनट रुको, take relax, पानी पियो, breathe, take a long breathe and then answer, क्योंकि उससे पहले आंसर ही नहीं दे पा रहे थे। तो when we become nervous, then it become difficult to answer things, and ultimately she got selected, she was intelligent। तो बेसिकली क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम फेयर ऑफ जॉब एक्चुअली। तो आप ये समझ लो कि जब आप पढ़ाई करके IIIT में एडमिशन ले सकते हो, दैट मीन्स यू ऑलरेडी क्रॉस दैट बेस लाइन ऑफ प्राइवेट कॉलेज, है ना। तो आपको जॉब क्यों नहीं लगेगा, है ना। हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ और कॉन्फिडेंटली जाके इंटरव्यू दो ना। और बेसिकली क्या होता है, इंटरव्यू से पहले जस्ट सी योर रिज्यूमे, जो आपने लिखा है ना उसको अच्छे से देख लो। रिज्यूमे में जो चीज है उसके साथ थरो होना चाहिए आपको इंटरव्यू से पहले, मतलब दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड, डोंट गो हियर एंड देयर, बट जो आपने रिज्यूमे में लिखा है उसके साथ थरो होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। Okay, thank you, sir. Sir, the next question is that what should be our roadmap from the starting of the first year? Yeah, roadmap। So roadmap you can understand, जिस तरीके से मैंने सवालों के जवाब दिए उसी के अकॉर्डिंग रोड मैप बना सकते हो।
Initially, you have plenty of time, first year, second year. You should focus on your communication skills, है ना? So it's very easy. You can take guidance from anyone, है ना? And communication skills can be improved at initial. From second year, see, there are for computer science students and for others also, those who are preparing for interview, there are few what we say is basic subjects, और जिसको बोलते हैं बेस होता है ब्रांच का, जैसे कंप्यूटर साइंस का होता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये दो चार सब्जेक्ट बेस होते हैं, है ना? इलेक्ट्रिकल के कुछ होते हैं, मतलब आई डोंट नो, बट इसी के वजह से कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स है ना, उनको मतलब उन सब्जेक्ट्स का आपका बेस क्लियर होना चाहिए, मतलब जो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है उनका बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर कैसे हो सकता है कि जैसे फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको ऊप्स क्या है ये पता होना चाहिए, उसका एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए। एसिड प्रॉपर्टीज क्या है आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए कि आइसोलेशन कैसे हम आइसोलेशन बताएंगे, एसिड प्रॉपर्टी में जो आइसोलेशन होता है ना? तो या फिर कैसे एटॉमिसिटी बताएंगे, है ना? तो उसको आपको एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए। मतलब आपको लगता है आपको आ रहा है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपको नहीं आता है, समझ लीजिए। मतलब नंबर जस्ट डोंट रन बिहाइंड मार्क्स, आपको एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए चीजें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो अगेन रिपीटिंग वेरी सेम थिंग कि पहले फर्स्ट ईयर में you should, if you are not good at communication skills, you try to improve your communication skills. Second years में जो subjects हैं, go with the basics. और मैं क्या करता था, मतलब जो बेसिक चीज है उनके शॉर्ट नोट्स बनाता था। शॉर्ट नोट्स मीन्स वेरी शॉर्ट नोट्स, किताब नहीं बनानी है, मतलब मैं जब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता था तो एक यूनिट का एक पेज, मैं आखिरी दिन मतलब 5 पेज लेके जाता था, एग्जाम से पहले बस वही 5 पढ़ता था। इसी तरीके से हर चैप्टर के मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने, जैसे बहुत सारी चीजें होती है, ये क्या है, डेफिनेशन से रिलेटेड चीजें और कुछ भी समझाना है, मतलब यू हैव टू राइट इन शॉर्ट। आपको पूरी इसकी कहानी नहीं लिखनी है, और ऐसा लिखना है कि ताकि आपको चीजें क्या है वो भी पता चल जानी चाहिए, है ना? इस तरीके से आपको लिखना है। तो शॉर्ट नोट्स इनिशियल सेकंड ईयर से आपको बनाना शुरू कर देना चाहिए फॉर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। then coding, and according to your branch wise, and if we can start from fourth semester, fifth sixth में आप coding वगैरह, 1 year of coding is 1 year regular and consistent coding can help you out for CSE. Similarly, you can consider for the other branches also, and then at the end of the day you are confident and you will easily crack the interview. बेसिक्स मतलब जो इंटरव्यू में पूछते हैं ना, कुछ हाईफाई चीजें नहीं पूछते हैं, बेसिक्स ही पूछते हैं। डीबीएमएस में पूछेंगे तो 1NF 2NF क्या होता है, मतलब बहुत सारे बेसिक्स ही, मतलब इफ आई नीड टू आस्क तो बहुत बेसिक पूछते हैं। और इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, मतलब एक बार जस्ट यू कैन गो थ्रू कि क्या है, क्या होता है, एपीआई क्या होता है अगर कोडिंग कर रहे हो, एचटीटीपी क्या होता है। तो वो मतलब बहुत ही जो हर सब्जेक्ट का जो बेस होता है ना भाई, आई एम सी अगेन एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू मेक इट बहुत क्लियर मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने आप को सिंपल रखो, बेसिक्स पे ध्यान दो, और डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट योरसेल्फ, बस जो है वो है, देन यू विल इजीली क्रैक। ठीक है? यस प्लीज सर, yeah, one of the student has Utkarsh from IT branch. He is asking that how can we improve our communication skill? what I used to do, तो अगर मैं बताऊंगा तो some people may find it funny, but I improved in that way. मैं किसी भी जीडी में आउट नहीं हुआ आज तक, अनलेस 12th में मैं एक बार एसएसबी के लिए गया था तो उसमें आउट हुआ था, फर्स्ट डे आउट। उसके बाद से आई मेड ए माइंड कि आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। somebody told me, because there is a kind of hesitation of opening mouth itself कि कैसे इंग्लिश में बोलना। तो बेस्ट पार्ट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू इज
एट दोस टाइम somebody gifted me this भगवत गीता, तो मैं क्या करता था, एक्चुअली भगवत गीता और एनी बुक, आई प्रेफर भगवत गीता, क्योंकि उसमें क्या ना, वो होता है इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश है। अदरवाइज जैसे कंप्यूटर साइंस की किताबों में क्या है, A+B आ जाता है या फिर फॉर्मूला आ जाता है, कुछ कुछ आ जाता है। तो आई यूज टू रीड अलाउड, मतलब आप कमरा बंद कर लो और कमरा बंद करके तेज पढ़ना है। यू नीड टू स्पीक लाउड, फास्ट नहीं, तेज पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है, एंड ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू स्पीक आउट। वो आपका फियर ऑफ स्पीकिंग भी निकल जाता है। आप सोचते हो नहीं सर इंग्लिश तो हम पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ना इज डिफरेंट एंड रीडिंग इट लाउड इज डिफरेंट। जस्ट ट्राई इट फॉर सम टाइम, 15 days ट्राई करो एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इट अप। फिर बाद में जो एक चीज बचती है, दैट इज कॉन्फिडेंस। दैट कॉन्फिडेंस यू कैन जस्ट गेट if you'll associate with this kind of people. Yeah, these kind of people. I forgot his name, inspire guest. Yeah, so these people will give you confidence, because now he is hosting sessions, and similarly now he is hosting online. In a similar way he gives session offline also, these people. So automatically that boosts the confidence. Confidence can be boosted up, but before confidence you should know that yeah, Vinayak, I got that. Before that you should know कि what I need to speak. I'll tell you one thing, क्या होता है कि जब हम बोलने जाते हैं ना इंग्लिश, तो हमें पता है क्या बोलना है, लेकिन हमें वर्ड्स नहीं होते हमारे पास। होता है कि नहीं, ऐसा होता है? यस और नो? यस और नो टाइप। हम्म तो यही होता है एक्चुअली, वर्ड्स नहीं होते हमारे पास, इसी वजह से हम नहीं बोल पाते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो वो कैसे आएगा, जब हम ये लाउड रीडिंग करेंगे ना, तो क्या होता है, जब लाउड रीडिंग करते हैं ना, तो इट ऑटोमेटिकली मतलब लाउड रीडिंग करते हैं ना, जैसे क्या होता है, हम सिंपली वी आर रीडिंग, एंड जब लाउड रीडिंग करते हैं तो उससे डबल बेनिफिट होता है, जो हम बोलते हैं वो हमारे वापस अंदर जा रहा होता है, क्लैरिटी ऑफ साउंड, और यू स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स आल्सो। मतलब बेसिकली एक उसका नेक्स्ट स्टेज है कि जब हम पढ़ रहे हैं, उसके पढ़ते समय जो हमें वर्ड समझ नहीं आए, उसको अंडरलाइन करके डिक्शनरी से वर्ड की मीनिंग देखना, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। बट ये इनिशियल स्टेप ही अगर आप करेंगे तो दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल। मतलब दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। मेरे को किसी ने बोला था एक बुक के लिए, मतलब आई यूज्ड टू रीड लाउडली, देन आई यूज्ड टू मार्क द वर्ड्स। जैसे मैंने 15 मिनट एक या दो पेज पढ़े, इन दोस पेजेस आई यूज्ड टू मार्क कि कौन कौन सा मुझे वर्ड समझ नहीं आया, फिर उसकी मैं वोकैबुलरी में मीनिंग देखता था। और धीरे धीरे, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली दीज वर्ड्स आर रिपीटेड, जब वो बार बार रिपीट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें फिर याद हो जाते हैं, देन हम उनको फिर बाहर यूज भी कर सकते हैं, है ना। Things are simple, but this communication skills, for these communication skills, you need to start from very first year. Okay. Okay, sir. And yeah, just one Sir, thing, don't, there is one thing last, don't assume that कि बस 10 दिन पहले गोली खाऊंगा और मेरी इंग्लिश सही हो जाएगी, यार 1 महीने पहले करूंगा हो जाएगा। You need to for this is communication skills, you need to start from very early. Yes, please. yes, sir. One student, Harsh Bahor, is asking that which skills are highly payable nowadays. Anything you are perfect at. Money is never problem. जो भी आता है आपको परफेक्शन वाला आना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको हाई पे मिल जाएगा। हाँ, बट ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर ट्रेंडिंग थिंग्स, बट जब तक आप फाइनल ईयर में आओगे तब तक कुछ और ट्रेंड कर रहा होगा, तो डोंट गो फॉर दैट। कंप्यूटर साइंस आईटी सेक्टर एंड इट्स ग्रूमिंग इन सच ए वे कि हर साल नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ ना कुछ नया आ जाता है, तो डोंट गो फॉर दैट। ओके, व्हाटएवर you should know the best, मतलब with respect to that particular subject or that particular skill, जो भी आता है अच्छे से करो। मतलब this is what I can say. Just if I'll tell कि this is the technology, you'll go on and start learning that technology, वो टेक्नोलॉजी सीखने लगोगे, उससे नहीं होता। मतलब जस्ट मेयरली टेक्नोलॉजी सीखने से नहीं होता। फ्रेशर्स का इंटरव्यू क्रैक होता है आपके बेसिक्स से। अगर आपको बेसिक्स आता है ना, तो कंपनी में जाकर कंपनी वाले टेक्नोलॉजी तो आपको सिखा देंगे। अंडरस्टैंड?
Yes. Which language is the first language recommended to learn? मैंने तो C प्लस प्लस C सीखा था. C प्लस प्लस पहले C प्लस प्लस सीखा था. And C C प्लस प्लस are same. You know now I myself is confused कि मैंने पहले C सीखा था C प्लस प्लस, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही थे. आई थिंक C प्लस प्लस पहले सीखा था मैंने. तो आई वर्कड, है ना, मैंने मतलब C प्लस प्लस से काम शुरू किया था. और C प्लस प्लस में ये लाइब्रेरी आ गई ना, अब तो नया, पहले नहीं था. क्या नाम है ये जो वेक्टर्स जिसमें आ गए हैं? व्हाट्स द नेम ऑफ लाइब्रेरी? यूटिस, क्या नाम है, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली. जिसमें वेक्टर्स, STL सर, STL. हाँ, तो STL. that library is good. C plus plus is good. Actually, C is the basics. You should start from the C. C or Java. I preferred C, so C plus plus you can start. हाँ, मतलब C और Java, these two are basics. Now later it's all about syntax, you know. Java मतलब Java से आप सब कुछ कर सकते हैं. Java is that much broad. So Java is that much broad, you know, you can do anything with Java. But C++ फिर आगे जाके C++ से चीजें करने लगते हो, then learning a language is never a problem, क्योंकि syntax बदलते हैं बस. जैसे अभी मैं Go लैंग्वेज में काम करता हूँ, ट्रेंडिंग है, बट लेकिन अभी Go लैंग्वेज में काम करने मत लग जाना. तो गूगल ने बनाया था 2004 में, नाउ इट्स ट्रेंडिंग, मार्केट में ट्रेंड पे. यस प्लीज, क्या नेक्स्ट? सर, स्टूडेंट्स को एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है फर्स्ट ईयर में कि हमें डेवलपमेंट कब करना है और कोडिंग कब करनी है. कई सारे लोग बोलते हैं डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर में करना चाहिए, सेकंड ईयर में करना चाहिए. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट सर? एंड बेसिकली व्हेन इज द राइट टाइम फॉर कोडिंग एंड व्हेन इज द राइट टाइम फॉर डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मतलब सर, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ऑल दीज स्किल्स which are. I'll tell you one thing. When I came to Bhopal, तो जब मैं इनिशियली एक पीजी आई लिया, आई टुक ए फ्लैट, तो पास में एक व्यक्ति रहता था. तो डिप्लोमा वाले होते हैं ना, आईटीआई किया होता है, ऐसे डिप्लोमा, आईटीआई, और क्या एक और चीज होती है, पॉलिटेक्निक, ये सब. तो कंप्यूटर साइंस उसमें भी होता है. तो दीज पीपल यूज्ड टू गो फॉर ए कोचिंग. वहां पे जाके वो वेब डेवलपमेंट, एचटीएमएल, सीएसएस सीखते थे. वो बंदा 1.5-2 साल से, मतलब 1-1.5 साल से, मतलब काफी उसने सीखा. नाउ यू बिकेम काइंड ऑफ एक्सपर्ट, एकदम खतरनाक, तुरंत से फ्रंट एंड डेवलपमेंट वगैरह कर लेते हैं. नाउ द थिंग इज, वो क्या हो गया, मैकेनिक का काम हो गया. ही लर्न दोस थिंग्स, तो वो उस चीज में आपको वो जैसे भी आएगा वो उस तरीके से बना के दे देगा. बट यू नीड टू बिकम ए इंजीनियर. तो डोंट ट्राई टू बिकम ए मैकेनिक कि मतलब डेवलपमेंट सीख लिया. पीपल जो आते हैं वो आपसे डेवलपमेंट देख के मतलब उतना वो नहीं खुश होते हैं. ठीक है, डेवलपमेंट इज नॉट ए बिग डील. गूगल करोगे चीजें, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, देखते देखते आप यू कैन डू डेवलपमेंट बस. लेकिन बेसिक्स पता होना चाहिए, है ना. मतलब आई सॉ पीपल, दे गो फॉर सर्टेन काइंड ऑफ, मतलब ठीक है, इट्स गुड, मतलब दैट शुड बी एज ए, यू नो, मतलब एज ए मेन कोर्स नहीं होना चाहिए वो, ऐसे यू नो स्टार्टर ही होना चाहिए या साइड डिश होना चाहिए. ये वेब डेवलपमेंट वगैरह ठीक है, एक हफ्ते का कोर्स कर लिया तो उससे आपको पता चल जाएगा एचटीएमएल, सीएसएस, बस. मतलब इतना ही हो जाता है, एक हफ्ते सफिशिएंट, एक हफ्ता या 15 दिन इज सफिशिएंट. फिर आप जब चीजें करोगे तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, जस्ट गूगल इट एंड डू इट, है ना. वो मेन कोर्स का डिश नहीं है, वो साइड डिशेस है. मेन कोर्स आपका क्या है? डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एडा, डेटा स्ट्रक्चर, दीज आर द थिंग्स. जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, और एक लैंग्वेज पे हैंड्स ऑन होना चाहिए. अंडरस्टूड? बाकी तो ठीक है, टेक्नोलॉजी यू कैन लर्न, मतलब जब आपको लग रहा है दिस, अभी मैं इन चीजों में कंफर्टेबल हूँ, देन गो फॉर टेक्नोलॉजी, है ना. ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ So टेक्नोलॉजी. basic. टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये वाला पीछे की चीजें हैं जो यू नो प्रायोरिटी में हमें चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है. ये क्वेश्चन आया, सर हैव यू परचेज एनी कोर्स ड्यूरिंग कॉलेज? ना, कोर्स तो कभी नहीं खरीदा. कोर्स तो मतलब ये तो पका पकाया खाना हो जाता है, मतलब आई नेवर प्रेफर्ड. थोड़ा मेहनत करके पढ़ो ना.
पका पकाया खाने की आदत हो गई क्या? See, I'm very straightforward kind of a person. Google is there, everything is there. आपको जो कोर्स पढ़ना है, गूगल करो, पहले थोड़ा समझो क्या चीज है. टेक ए स्टैंडर्ड बुक, टेबल ऑफ कंटेंट समझो, टेबल ऑफ कंटेंट से टेक द टॉपिक्स, फिर टॉपिक वाइज यू जस्ट सर्च इट. उसका थोड़ा कंटेंट पढ़ लिया किसी वेबसाइट से, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक का यूट्यूब वीडियो देख लिया, और कहीं से अगर बाई लक आपको प्लेलिस्ट अच्छा मिल गया तो उसको पूरा फॉलो करो, नहीं तो डोंट नीड टू फॉलो कंप्लीट प्लेलिस्ट. पर्टिकुलर टॉपिक वाइज सम पीपल, कोई एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छा पढ़ाता हो, कोई व्यक्ति दूसरा टॉपिक अच्छा पढ़ाता हो, जस्ट वेरिएशन लेके और फिर जब एक्सप्लोर खुद ढूंढ के पढ़ते हैं तो मजा भी आता है. अब पिताजी ने पैसा दिया है, कोर्स खरीद लिया और बैठे हैं, मन भी नहीं लग रहा है, ऐसे बस ऐसे बैठ के ऐसे बैठे कॉपी में नोट्स लिख लिया, तो उससे सीखते भी नहीं है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ऑल्सो, दैट काइंड ऑफ थिंग. So that's my personal choice. Obviously you can purchase any. मैंने तो अपने टाइम पे नहीं खरीदा था. People are now purchasing, but and if you are not good at searching, Google चलाने में एक्सपर्ट नहीं हो तो सर्च कर सकते हो. जो Google चलाने में एक्सपर्ट है, they don't need to buy. Yes, you can actually. I should not pick the questions. Yes, Vinayak. Yes, sir. So actually there is, it may sound a bit funny, but सर अगर हमें इंडिया मार्ट में, जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें इंटर्नशिप करनी है तो क्या करना पड़ेगा? Internship is like I'll tell you literally. See, ये सारी चीजें तो डिटेल में एचआर को पता होती हैं, बट द थिंग इज मैं कई बार पूछा हूँ जब इंटरव्यू लेता हूँ, तो दे गिव बोथ द थिंग्स, इंटर्नशिप एंड फुल टाइम एट द वेरी सेम टाइम. सिंपल है, नॉट ए डिफिकल्ट थिंग. कंपनी आती है, रिक्रूटमेंट करने आती है, शायद TIIT में लास्ट टाइम आई थी, मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू भी लिया था, मुझे पता नहीं, मैनिट का भी एक बच्चा था, उसका इंटरव्यू लिया था, एंड ऑब्वियसली दोनों को मैंने सेलेक्ट किया था. तो जस्ट एक्चुअली एक चीज है, इंडिया मार्ट मतलब मैं अपनी कंपनी का बता रहा हूँ, तो वो 10th एंड 12th में मार्क्स देखती है, देयर शुड बी अबाउट 80%. बाकी कंपनीज नहीं देखती है, बट इंडिया मार्ट सीज कुछ लोगों के बोले सर हमारे तो 80 नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, देयर आर सो मेनी कंपनीज, इट्स नेवर अबाउट इंडिया मार्ट. तो मार्क्स आर नेवर हिंड्रेंस, जस्ट वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी. कुछ कंपनीज होती हैं और उनके नियम है तो कुछ कर नहीं सकते. इंटर्नशिप तो बिकॉज योर कॉलेज इज एट गुड रेपुटेशन, आप तो इंटर्नशाला में डालोगे तो यू विल गेट इंटर्नशिप एनीवेयर एट एनी टाइम. पेड इंटर्नशिप दैट टू. ओके. Okay, sir. Sir, my next question is that, see, what are the career opportunities apart from the college campus? Like someone if is interested in off-campus placements, then what should he do? It's totally totally depends on your basics. आपका बेसिक स्ट्रांग होगा ना तो आप कहीं पे जाके प्लेसमेंट ले सकते हो, है ना. तो इट्स नेवर लाइक कि कॉलेज में बस थोड़ा आसान हो जाता है, मतलब बिकॉज कॉलेज में कंपनी आई है तो फ्रॉम यू एंड योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स उन्हीं में से सेलेक्ट करना है. बाहर क्या है कि द पब्लिक इज पब्लिक जो है वो लार्ज है, तो उसमें थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन आपके बेसिक्स अगर क्लियर है और अच्छे हैं तो फिर यू आर गुड टू गो. एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज. आईटी हैज आईटी में जॉब का कभी कमी नहीं है, जस्ट टैलेंट की कमी है, तो जस्ट वर्क ऑन दैट. So basically, we can crack any company if our skills are clear. Yeah. Okay, thank you, sir. Sir, one more question is that how you told that we should interact with the recruiter in a very friendly and open way, whatever like we should present ourselves in that way only. So, sir, can you please just tell us some things which other lacks in the interviews? Most of the students lacks, which very few students have, so that all the first years who are here, they can get to know that okay, these are the things which most of the people lack. So if I will include that, then it will be a plus point.
lag during interview. As such, you know, I think I already told this thing. है ना? मतलब for when I ask question, and then I start from the very basic one. जैसे computer science का लेता हूँ तो I use मतलब many of my friends also told कि क्या भाई सिर्फ oops पूछता है. तो I start with oops कि oops क्या है पहले. अगर वो बंदा oops बता देगा तो ही मैं आगे जाऊंगा. तो बंदा अगर oops ही नहीं समझा पाता है तो फिर मतलब आगे इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पास कुछ बचता नहीं है. इसीलिए मैं हमेशा बोला कि बेसिक अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर बंदा आगे पूछेगा ही नहीं, चाहे भले ही आगे का कितना भी आता हो आपको, है ना. और उसके बाद द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इज रिक्वायर्ड, and the best part is, actually what happens sometimes we know the things but at the time of interview we are not able to recognize. So this is just due to lack of our concentration. So concentration we have, अपना proper, when you are not distracted then your concentration is proper. नहीं तो nowadays people they are not able to focus at one particular point for more than I heard like 6 seconds. ऐसा कुछ है, गूगल भी कर सकते हैं. Yes, I a may be wrong. scientific study. हाँ, तो इसीलिए अपना फोकस अच्छा रहेगा तो चीजें आप अच्छे से मतलब ग्रैब कर सकते हैं, इजीली चीजें याद कर सकते हैं, इजीली चीजें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. You won't be getting distracted and so many things. मतलब ऐसा तो नहीं है. People, different people have different shortage, so everyone should work upon them. Any Okay, more sir. questions? Yeah. Okay. Sir, I would like to ask the last question, which Tarun from IT branch is asking. He's asking, sir, what are the basic skills required to get internship from second year? And one more thing which I would like to add in this question, like I was having one question which says that is it important to do internship in the first and the second years? Because sir, you have recruited so many employees. You can tell that whether it does really make impact if we are having internship in the first and second years. And yeah, Tarun question is already there, that what are the basic skills required to get internship in second year? These two questions. Doing internship is never a need for a company. मतलब जब फाइनल ईयर में आप जाते हैं प्लेसमेंट के लिए तो इट्स नॉट लाइक कि आपने इंटर्न कर रखा. ठीक है, इट कैन बी ए पॉजिटिव एस्पेक्ट बट इट्स नॉट नेसेसरीली मतलब कैन बी ए पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि आप किसी चीज में इंटर्नशिप करके आए होगे फाइनल ईयर में किसी कंपनी में बैठ रहे हो तो वो उस टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं कभी करता होगा. तो ऐसा भी नहीं है कि इंटर्नशिप इज मस्ट. एंड आई फील लाइक पर्सनली आई हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ things. So the things is कि especially in second years people, if you are talking about internship, so why don't you learn things at being at college, because college life is being in the college life you should uh, grow yourself. Ultimately at the end you would be going and working out only. Why at second year I don't I never planned in that way. Third year you can try, if it gets it's nice. Otherwise this internship thing this is started in recent days, last 4-5 years. Earlier direct full placement used to be there and rarely few companies used to call for internship and all those things. Why people started calling for internship? Because people they don't study in college nicely and their basics are very very gone kind of thing. मतलब उनके बेसिक्स अच्छे नहीं होते हैं तो फिर उनको क्या है, बुलाना पड़ता है इंटर्नशिप में फुल टाइम से पहले, तब वो सिखाते हैं ताकि वो फुल टाइम में आए तो हमारे कंपनी के लिए कुछ काम करना शुरू कर पाए. ये मेन रीजन होता है. मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ क्योंकि
कॉलेज के टाइम पे बच्चे पढ़ते नहीं है, और फिर इसीलिए कंपनी क्या करती है, इंटर्नशिप में बुला के उनको ट्रेनिंग करवा देती है कि ताकि ये कंपनी में जब फुल टाइम ज्वाइन करे तो कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दे। नहीं तो 3-4 महीने उसको मतलब चीजों सेट करने में ही लग जाएंगे, इसीलिए बुला लेते हैं लोग। बट इट्स बेटर इफ यू डू इट बाय ओन, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज सी, गेटिंग एन इंटर्नशिप इज गुड, बट ट्राई टू टेक इट इन थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर में लर्न, मतलब बेसिक्स पे फिर कब पढ़ोगे, अभी तो फर्स्ट ईयर तो मजे मजे में चले जाएगा। सेकेंड ईयर में जो बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं मेनली थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में, डेटा डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, कंपाइलर डिजाइन, टीओसी, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, है ना, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड एंड वन मोर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, से कुछ होता है सब्जेक्ट। ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ना, इस पे अगर आप थरोली करके, मतलब क्योंकि ये सेकंड ईयर में सारे सब्जेक्ट होते हैं, अगर इन पे फोकस ना करके आप इंटर्न में फोकस करने लगोगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, दिस इज दिस शुड बी द प्रायोरिटी फ्रॉम योर एंड। बाद में चीजें अगर आप उसके मतलब फोकस करने के बाद भी अगर इंटर्न मिल जा रहा है एंड दैट्स डिफरेंट थिंग, ले सकते हैं, है ना। बट ये सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि दिस सब्जेक्ट वंस यू आर इनसाइड ए कंपनी यू वोंट बी रिवाइजिंग दिस सब्जेक्ट्स अगेन, बट बाद में आगे जाके काम आता है, क्योंकि जब आप प्रमोशन आता है तो आपको व्हेन यू वर्क, है ना, ऑन थिंग्स लाइक, जब आपको आर्किटेक्चर डिजाइन करना होता है तो आपको इंटरनल वर्किंग पता होनी चाहिए कि ये सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। वो हमने पढ़ा ही नहीं तो फिर कैसे डिजाइन करेंगे, तो फिर आगे जाके फिर आपको बहुत मुश्किल होती है, फिर आपको वहां जाके उस स्टेज पे जाके फिर पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आप फिर आगे ग्रो नहीं कर पाते। और मैं इसीलिए मैं इंटर्नशिप उस तरीके से प्रेफर नहीं करता था। What are the best companies which provide internship? Can you name some companies? Everyone is providing internship, and for internship, it's better to take internship. Agar if you want to take internship in some company which is kind of not that much big, kind of startup you can say, क्योंकि वो लिटरली आपको काम करवाएगी, सिखाएगी। बड़ी कंपनी में ले लोगे तो आपको बैठे रहेंगे, आपको ज्यादा मतलब दे वोंट पे दैट मच एफर्ट्स ओवर यू। तो इंटर्नशिप करना है तो छोटी कंपनी में ही करना अच्छा रहता है, क्योंकि लिटरली आपको प्रेशर देके काम कराएंगे, सिखाएंगे आपको। ये मैंने देखा है, मतलब हमारी कंपनी में आते हैं इंटर्नशिप तो वी गिव सर्टेन टाइम, ठीक है आपकी इंटर्नशिप है 3 महीने की, 1 महीना तो हम कुछ लर्निंग का देके निकाल देते हैं, दूसरे महीने में थोड़ा बहुत काम करा लेते हैं, और बस ज्यादा देते नहीं कुछ करने में। बट आप छोटी कंपनी में जाओगे तो वो आपको लिटरली बहुत आपका डे टू डे प्रोग्रेस देखेगा, आपको टास्क देगा, तो आपको वहाँ लर्निंग ज्यादा होगी। ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा होगा लेकिन लर्निंग भी ज्यादा होगी, इस तरीके से। ओके, आई थिंक इट्स ऑलरेडी 1 hour. I was told about 40 minutes. So I think our host is missing. अच्छा, I need to ask one thing. Like whatever I told, है ना, जो भी मैंने बोला वो आपको समझ में आया? मतलब yes or no, मतलब बताओ। पता चला मैं इतना कुछ बोला और आपको कुछ समझ ही नहीं आया, तो फिर what's the use? अनिकेत शुक्ला, यस सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर हो गया कि ऑल क्लियर हो गया? यार, नाइस। अच्छा है, मतलब दिस वन थिंग यू शुड बी वेरी क्लियर विद, आई टेल यू, कि जब आप ट्रिपल आईटी क्रैक कर सकते हो तो प्लेसमेंट तो फिर चुटकी वाली चीज है, यू कैन इजीली गेट इट, सो नेवर टेक दैट काइंड ऑफ टेंशन, बट पढ़ाई करो, मेहनत करो, है ना, एंड डोंट गेट डाइवर्टेड। आप चीजों में, उल्टी सीधी चीजों में डाइवर्ट हो जाओगे तो दैट वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग, है ना। एंड या वन मोर थिंग, अच्छा, दीस पीपल टोल्ड यू व्हाट मंत्र मेडिटेशन और व्हाट, कोई बोलेगा यस और नो? किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, दे टोल्ड, ओके।
अच्छा, yes sir, there was a session about it. Yeah, matlab I found it because I connected way long in 2017 with people, some people, few people. They recommended me, and at that time, I find it peaceful. I'll give you example. I hope everyone have time. तो मैं फिर आपको लगेगा कि क्यों करना चाहिए, मतलब अननेसेसरली पीपल, ऑब्वियसली देयर क्वेश्चंस तो होने चाहिए कि क्यों हम करें भाई, है ना? तो क्यों, देखो, तो व्हेन आई वाज इन बीटेक, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, कोई भी व्यक्ति, टेक योरसेल्फ, है ना? अभी छुट्टियां आ रही हैं, तो जैसी छुट्टियां आ रही हैं, ये थॉट हमारे माइंड में क्लिक किया, तो तुरंत कनेक्टिंग थॉट नेक्स्ट हमारे क्या आता है कि घर जाना है। लिखते जाना यस और नो, आता है कि नहीं? जल्दी जल्दी फास्ट आता है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट थॉट वाज कि छुट्टियां आ गई, हमें घर जाना है। तो सेकंड थॉट ये है कि घर जाना है। और जैसे घर जाना है, ये माइंड में थॉट आता है, जो लोग दूर के रहने वाले बोलते हैं कौन सी ट्रेन से जाएंगे, आता है कि नहीं आता है? या जो बस से जाने वाले तो कौन सी बस से जाएंगे, यस और नो? और जैसे ही आता है कि कौन सी ट्रेन से जाएंगे, कौन सी बस से जाएंगे, तो तुरंत ये आता है कि भाई रिजर्वेशन कर लेते हैं, बाद में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस और नो? ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे ये आता है कि हमारे पास देखो रिजर्वेशन करना है, और हमारे पास कुछ ट्रेन के नेम्स होते हैं कि भाई 3-4 ट्रेन है घर जाती हैं, एक में रिजर्वेशन करना है ना? तो यू ट्राई टू चूज द बेस्ट वन। तभी एक अचानक से दिमाग में थॉट आ जाता है, यार उस ट्रेन से गया तो यार ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो इससे तो बिल्कुल नहीं जाना है। कभी ऐसा हुआ है, यस और नो? टाइप इट फास्ट। ओके। फिर क्या होता है कि जैसे ये थॉट आता है कि उस ट्रेन में यार ऐसे हुआ था, एंड सडनली कोई किसी के साथ कुछ इवेंट हो गया, और किसी के साथ सपोज किसी तरीके का इवेंट हुआ, किसी ने कुछ देखा, उस इवेंट के पास जैसे हमारा थॉट जाता है, फिर उस इवेंट से हम सोचते हैं यार वो लड़ाई हुई थी, और फिर ऐसी लड़ाई हमारे स्कूल टाइम पे भी मेरे दोस्त के साथ भी हुई थी, सम देयर इज कनेक्शन। उस लड़ाई से हम दूसरी लड़ाई पे कनेक्ट कर लेते हैं, and this is how we started from one place, and we are landing somewhere else. ऐसा होता है कि नहीं होता है कि we are starting from some one place and we end up landing somewhere, और फिर हमें लगता है यार मैं तो कहाँ था और कहाँ आ गया। होता है कि नहीं होता है, यस और नो? होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल, यस, डॉट कनेक्टेड, लेकिन हमें बैक डॉट कनेक्ट करना है लेकिन हम कनेक्शन करते करते वी गो समवेयर एल्स, है ना? चेन ऑफ थॉट्स, यस। ऐसी एक और चीज, जैसे हम किताब लेके बैठते हैं, बड़ी सी मोटी सी किताब, मैं 12th में केमिस्ट्री की वो थी, क्या नाम है, केमिस्ट्री की कौन सी थी, मैं भूल भी गया यार, दिस प्रदीप। तो मैं उसको लेके बैठता था पढ़ने के लिए, और किताब सामने खुली है और आधा घंटा हो गया, मैंने एक पेज भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैं किताब तो खोला, 2 लाइन पढ़ के गई और थॉट्स में खो गया था, है ना? ऐसा हुआ है किसी के साथ, यस और नो? यस। सो दिस इज हाउ मच डिस्ट्रैक्टेड वी आर, क्योंकि हमारा माइंड मतलब फोकस में ही नहीं है ना, कंसंट्रेटेड ही नहीं है। हाँ, यस, हमारा माइंड फोकस ही नहीं है, कंसंट्रेटेड ही नहीं है। तो दिस इज इसीलिए हमें चैंटिंग करना चाहिए। अब बोलेंगे यार चैंटिंग हमें तो फायदा नजर ही नहीं आ रहा, है ना? तो इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे क्या है, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, साउंड, 5 चीजें हैं ना, समझ आता है ना? 5 एलिमेंट्स, यस और नो? समझ में आता है सबको ये? ओके। देखो रिस्पॉन्सिव रहोगे तो चीजें बताऊंगा, नहीं तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम अप हो गया, आपका भी मेरा भी, है ना? तो 5 एलिमेंट्स हैं। अर्थ, समझ में आता है सबको, टच भी कर पाते हो, देख भी पाते हो, सबको समझ में आता है ना? वाटर, टच कर पाते हो, स्मेल भी कर पाते हो, सब कुछ कर पाते हो, समझ में आता है। फायर, ठीक है, देख पाते हो, हीट महसूस कर पाते हो, समझ में आता है। एयर, देख नहीं पाते लेकिन महसूस कर पाते हैं, है ना? उसके बाद साउंड, साउंड सिर्फ सुन पाते हैं, उससे पता चलता है कि साउंड भी कुछ है। उसके बाद ईथर, आकाश, देख भी नहीं पाते हैं,
कैसे आपको पता चलता है कि आकाश हाँ सच में है, लेकिन हम मानते हैं ना, है ना? तो एक्चुअली क्या होता है कि दिस इज ग्रॉस, अर्थ का था ग्रॉस था। जब ग्रॉस से सेटल में जाते हैं ना, तो चीजें उस तरीके से हम अपनी लेवल से अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आती, लेकिन चीजें होती हैं, है ना? अब ये तो अर्थ वाटर फायर ईथर, मतलब ईथर तक गए हम, तो इतनी सेटल हो गई। ईथर से फिर हम और आगे जाएंगे, फिर माइंड तक पहुंचेंगे, तो माइंड कितना सटल है, माइंड बहुत सटल है ना? थॉट्स मतलब हमारे जो कितने सटल है ये सारी चीजें, तो हम उनको कैसे समझ पाएंगे? तो इसीलिए मतलब ये चैंटिंग है ना, वो सटल लेवल पे काम करती है, इसलिए हमको डायरेक्ट समझ नहीं आता भैया। हमने 10 रुपए दिए, वहां से समोसा मिल गया, वो समझ में आता है कि भैया 10 रुपए का मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे को आउटपुट मिला है। लेकिन हम चैंटिंग कर रहे हैं तो उसका आउटपुट मिलेगा, नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, कैसे पता चलेगा? तो हमें सामने दिखता नहीं है ना, तो हम फील लाइक कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए। बट वो क्या सटल इंप्रूवमेंट होता है, वो आपको ऐसे दिख नहीं रहा है, बट इट्स गेटिंग इम्प्रूव्ड। तो दिस इज द थिंग। अगर आप यही सारी वही सारी चीजें करना चाहते हो जो आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो फिर गड़बड़ है। एक वो जोक चलता है ना कुछ, प्रोफेसर और चाइल्ड का। प्रोफेसर बोलता है देयर इज नो देयर इज नो गॉड। तो बोलता है व्हाई देयर इज नो गॉड, यू कैन सी गॉड, नो, यू कैन फील गॉड, नो। तो बोलता है, तो बोला तो दैट मींस अकॉर्डिंग टू साइंस देयर इज नो गॉड। व्हाट दैट स्टूडेंट टोल्ड, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड इट, रेज योर हैंड। वन, ओनली वन, टू, यस, थ्री, फोर, यस। तो क्या बोलते हैं कि वो बोलता है प्रोफेसर को बोलता है कि प्रोफेसर यू हैव डोंट हैव मतलब माइंड, यू डोंट हैव ब्रेन और माइंड, समथिंग लाइक दैट। बोलता हाउ कैन यू से दैट, कैन यू सी इट, नो, कैन यू फील इट, नो, सो अकॉर्डिंग टू साइंस यू डोंट हैव इट। So this is how you should understand. It's not necessarily to believe in something. You should be able to see and feel it. There are few subtle things that you'll understand when your level of understanding will arise. मतलब वो आपका level of understanding जब ऊपर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, then we'll chant for few minutes only and we'll wind it up. जैसे ठीक है, आई थिंक वी शुड नॉट टेक, ऑलरेडी टाइम हो गया। नेक्स्ट सम टाइम जब नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे तो विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। सो आई थिंक होस्ट, वेयर इज होस्ट विनायक? क्या? सो आई थिंक शुड वी चैंट हियर फॉर फ्यू मिनट्स, like 5 minutes, not more than that, already